तो आज देश का आम बजट पेश कर दिया गया और आम बजट पेश होने के बाद अब तमाम तरीके की जो उम्मीदें थी, उम्मीदों में बदली, हकीकत में बदली या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 2022-23 के लिए जो तमाम वादे किए गए हैं वो वादे हम आपको बता देते हैं। सरकार ने दावा किया है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा जरूर गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज वाला कर्ज भी दिया जाएगा। नए टैक्स रिफॉर्म्स लाने की योजना है। अगले 2 असेसमेंट साल तक, यानी कि अपडेटेड आईटीआर आपके लिए संभव होगा अगले 2 साल तक। कॉर्पोरेट टैक्स को 18 से 15% कर दिया गया। डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% का टैक्स लगा दिया गया। दिव्यांगों को भी कर राहत का ऐलान किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी और मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल एलिमेंट हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। Been selected strengthening of health infrastructure, speedy implementation of the vaccination program, and the nationwide resilient response to the current wave of the pandemic are evident for all. The productivity-linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response, with potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crore during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. Railways will develop new products and efficient. तो ये आपने निर्मला सीतारमण को सुना। एक छोटा सा चंक हमने आपको सुनाया जब उन्होंने बजट रखा, लेकिन बड़ी बातें क्या हैं ये आपको हम तफसील से जरा बता देते हैं। देखिए, आम बजट 2022-23 पेश कर दिया गया है और 22-23 के बजट को पेश करने के साथ ही साथ बजट में कॉर्पोरेट टैक्स पर राहत का ऐलान किया गया। इसके अलावा 18% से टैक्स घटाकर 15% कर दिया गया है। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी पर सरकार ने 30% का टैक्स लगाया है। वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% का आपको टीडीएस भी लगेगा। इसके अलावा तमाम रत्न आभूषण के ऊपर भी यहां कुछ फैसले लिए गए। क्षेत्रीय भाषा में 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी, ये एक बड़ा रिफॉर्म। लेकिन इनकम टैक्स को लेकर बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में कुछ अंतर किया जाए, छूट बढ़ा दी जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया गया। कुछ और भी बयानात सामने आए हैं बजट के बाद, वो हम आपको सुनाते हैं। The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. To reduce our dependence on import of oil seeds, a rationalized and comprehensive scheme to increase domestic production of oil seeds will be implemented. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%,
highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus with a microeconomic level all-inclusive welfare focus, promoting digital economy and fintech, technology-enabled development, energy transition, and climate action, and relying on virtuous cycles starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment. For delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. States will be encouraged to revise syllabi of agricultural universities to meet the needs of natural zero budget. तो निर्मला सीतारमण को आपने सुना बजट रखते हुए। ये बजट जो उम्मीदों का बजट था, लेकिन कितना उम्मीदों पर खरा उतरा ये महत्वपूर्ण। 5 राज्यों में चुनाव है, उन 5 राज्यों के चुनावी जनता को इससे क्या फायदा क्या नुकसान ये महत्वपूर्ण। इसके अलावा तमाम नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए पक्ष और विपक्ष सभी मेरे साथ इस वक्त पॉलिटिकल नजरिए से आप इस बजट को देखने वाले लोग भी मौजूद हैं, और जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, वो पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। हम पहले जो पॉलिटिकल पैनल मेरे साथ मौजूद है उनसे तारीफ मैं आपका करा देता हूं। पंकज गुप्ता जी हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ महिमा जी हैं, आपका स्वागत है। इसके साथ ही साथ संदीप गोयल हैं हमारे साथ इनेलो से, पक्ष रखने के लिए आपका भी स्वागत है। राजपाल यादव सीए हैं, बेहतर तरीके से टैक्सेशन को समझते हैं, इनकम टैक्स को समझते हैं, उनसे भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ नवीन गर्ग हमारे साथ हैं। नवीन गर्ग साहब, आपका भी स्वागत है हमारे साथ। आप एक्सपर्ट हैं जीएसटी एंड इनकम टैक्स के। सबसे पहले एक एक कर सबका रिएक्शन ले लेता हूं। इस बजट को देखने के बाद, सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के लिए बजट कैसा है, उसके बाद फिर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग पर जाएंगे। शुरुआत मैं पंकज गुप्ता जी आप ही के साथ कर रहा हूं, क्योंकि आपकी पहले सुन लेता हूं, उसके बाद फिर बाकियों के सुनना ज्यादा बेहतर होगा। पंकज जी बताइए। तुषार जी, देखिए जो आज का बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है उसके लिए वो बधाई की पात्र है। यह बजट देश के सभी तबकों के लिए, सभी वर्गों के लिए बजट है, जिसमें विकास की तरफ ध्यान दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया है, क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान दिया गया है, और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए की तरफ ध्यान दिया गया है, लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए ध्यान दिया गया है। आप देखें डिफेंस सेक्टर में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान दिया गया है, और इसके साथ साथ बच्चों की जो कोविड की वजह से पीछे बच्चों की स्टडी इफेक्टेड हो रही थी, तो उनकी स्टडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ई विद्या प्रोग्राम का भी अनाउंस किया गया है। तो इस तरह से इस बजट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी समाज के सभी वर्गों की तरफ एक ध्यान दिया गया है। ये बहुत ही संतुलित ध्यान तो हर तरफ दिया गया। वैसे भी कहते हैं कि बजट सिर्फ अनुमान होता है, और जो अनुमान है उसमें तो अनुमान में हम हर सेक्टर में कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हकीकत में कितना बदलेगा और जिन चीजों पर सबसे ज्यादा जरूरत थी क्या उस पर भी काम किया गया, ये समझना जरूरी होगा। जिसके लिए मैं जाऊंगा, अभी नवीन साहब के पास भी जाऊंगा, मैं राजपाल यादव साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले महिमा जी के पास चलता हूं कि शायद वो इतना तारुफ रखेंगे नहीं आपसे बात से।
मैं महिमा जी चाहूंगा आप अपनी बात कहिएगा। नरेश त्रिहान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं बजट पे, पहले उनको सुन लेते हैं, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। We give out as salaries to consultants and other expenses, but patients at our sort of recommendation are exempt from paying GST to hospitals. So there is no pass-through. That means this 18% cost is added on to delivery of care and ultimately it goes to the patient. So what we had proposed was either we go to zero or we go to, we impose a small percentage on the patient, say maybe 3 to 5% GST, where it will enable to pass on the cost. हेल्थ केयर सेक्टर को कितना ज्यादा बूम मिलेगा, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि अभी रीढ़ की हड्डी मैं कहूंगा पिछले 2 सालों में देखने को मिला देश के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत इसी हेल्थ केयर सेक्टर के बढ़ने की थी। ठीक है, नरेश त्रिहान अपनी बात रख रहे थे। महिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात कहिए। तुषार जी, इससे पहले कि हम बात करें आज के बजट में जो हुआ, मुझे लगता है एक बात जो गौरतलब है और जो सबको समझने की जरूरत है कि हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 पब्लिश हुई और उसके अनुसार ये बात सामने आई कि भारत विश्व के सबसे असमान राष्ट्रों में से एक है आज। और यदि देखा जाए तो सिर्फ 1% जो जनसंख्या है भारत की, इस बात का जो बात मैं रख रही हूँ सीधा सीधा संबंध है आज के बजट से, कि भारत के अंदर सिर्फ 1% जनसंख्या 22% आमदनी को कंट्रोल करती है, जबकि निचली 50% जनसंख्या केवल 13% आमदनी की भागीदार है। ये बात समझना बहुत जरूरी है आज के बजट को देखने के लिए तुषार जी, क्योंकि आज के बजट से आम जन की उम्मीदें थी, मध्यम वर्गीय की उम्मीदें थी, सैलरीड वर्ग की उम्मीदें थी, क्योंकि पिछले 2 साल से 2.5 साल से कोरोना का जो पैंडेमिक है वो पूरे देश की कमर तोड़ने का काम कर रहा था। MSMEs का बुरा हाल जो पिछले 2 वर्ष में हुआ है, उसके बाद आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो सरकार की ओर देख रहा था बड़ी उम्मीद भरी नजरों से। लेकिन हमारी माननीय वित्त मंत्री ने आकर के क्या कहा, सबका साथ सबका विकास का जुमला तो पहले से था, आज उन्होंने एक नया जुमला दिया। आज उन्होंने जुमला दिया सबका प्रयास से हमने क्या अचीव कर लिया। तो एक बात तो तय हो गई कि इस सरकार ने मध्यम वर्गीय को या जो निम्न वर्गीय लोग हैं इस देश के, उनको एक बार फिर से अपने बड़े व्यवसायी मित्रों के लिए एक तरफ दरकिनार कर दिया और एक बार फिर से उनको हताश कर दिया और एक बार फिर से उनको आत्मनिर्भरता के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपना ध्यान खुद रखिए, सरकार आपका कोई ध्यान नहीं रखेगी। इसका प्रमाण हमें इस बात में मिलता है कि टैक्स स्लैब्स के ऊपर आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, सैलरीड वर्ग के लिए टैक्स स्लैब्स पे कोई हमने प्रभाव नहीं देखा, कोई उसमें घटाव नहीं देखा, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर हमने देखा कि फायदा दिया गया। जबकि हमने देखा, अब आप आज देखिए कि जैसा हमारे सेंट्रल ऑफिस से भी कहा गया कांग्रेस से कि सिर्फ जेबें खाली करने वाला बजट है, ये कुछ नहीं बजट है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि ये जो बजट है ये पीएम गति शक्ति का बजट है। मैं ये कहती हूं तुषार जी कि ये आम आदमी विरक्ति का बजट है, ये गति शक्ति का नहीं, ये आम आदमी विरक्ति का बजट है। और उसे यदि 6 बिंदु, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आम बजट का आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, ये जो आम बजट पेश हुआ है इसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, ये खास लोगों के लिए बनाया गया बजट था। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, एक एक करके पहले मैं सबके व्यू पॉइंट्स ले लेता हूं, फिर काउंटर क्वेश्चंस पर आऊंगा। संदीप साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी जरा माइक को अनम्यूट कर दीजिए पहले। हाँ जी, देखिए नाम तो आम बजट होता है, परंतु देखिए इस मौजूदा बजट के अंदर खास लोगों के लिए भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। जहां कॉरपोरेट जगत का टैक्स 18% से घटा के 15% कर दिया, वहीं उसके उलट एक मिडिल क्लास से संबंधित जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है, उसके लिए टैक्स के अंदर छूट 1% भी नहीं करके सरकार ने यह दिखा दिया कि सरकार आम लोगों की नहीं है, खास लोगों की है, कॉरपोरेट मंडली की सरकार है
आम लोगों से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। आप देखेंगे तुषार जी, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं आज कोरोना काल के अंदर चरमरा गई थी, लोगों के पास अस्पताल में ऑक्सीजन बेड सिलेंडर कुछ नहीं मिल पा रहे थे, आज इस बजट के अंदर कोई स्पेशल प्रावधान देश की स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत देने के लिए वो एक जो घोषणा की उम्मीद जो भारतवासी कर रहे थे, वो कहीं पर भी सरकार के मुंह से दिखाई नहीं दी, ना सुनाई दी। और दूसरी चीज जो शिक्षा का क्षेत्र आता है, शिक्षा को लेकर के भी सरकार के द्वारा कोई इतना बड़ा एक मैं उम्मीद कर रही थी जो भारत के लोग कि भी सरकार शायद इस कोरोना काल में जहां बच्चों की शिक्षा ठप पड़ी हुई है, वो शायद उसके अंदर कुछ तेज गति लाने के लिए कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएंगे कि बच्चों को शिक्षा के अंदर भी एक बहुत बड़ा दूरगामी उनको एक आयाम मिलेगा। तीसरा, किसान वर्ग जहां उम्मीद लगाए बैठा था कि जहां 3 कृषि काले कानूनों को वापस लेकर मोदी सरकार ने झुकने का काम किया था, किसानों का दिल जीतने का काम किया था, मुझे लगता है कि वो सरकार की टीस थी और सरकार ने अपनी टीस मिटा ली और मौजूदा बजट के अंदर किसानों के लिए कुछ खास घोषणा न करके किसानों को भी नाराज किया है। आप ये देखिए, जीएसटी जो कृषि उपकरण होते हैं उनके ऊपर कहीं पर भी कम करने की कोई घोषणा सरकार के द्वारा आज हमारे निर्मला सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई घोषणा नहीं की। और मिडिल क्लास तो आज के दिन सबसे ज्यादा मायूस हुआ। हमारी जो गृहिणी है, महिलाएं हैं, उनकी रसोई के ऊपर भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। वो भी महंगाई की मार जो झेल रही थी, उस महंगाई को दूर करने के प्रयास सरकार के द्वारा इस बजट में संदीप साहब, मैं लौटता हूं, दिखाई नहीं दे रहे। मैं आपके पास लौटता हूं। अब देखिए, ये तो हो गई पॉलिटिकल बातें, कांग्रेस विपक्ष में है, इनेलो की तरफ से भी कोई खास हम साथ देख नहीं सकते थे बजट में, और बात करना नेगेटिव पॉइंट्स पर भी जरूरी है, लेकिन कितना अर्थव्यवस्था के अनुकूल पॉजिटिव और नेगेटिव के मैं तौर पर देखूं तो मुझे ये बेहतर समझा सकते हैं नवीन साहब या राजपाल साहब। मैं पहले राजपाल साहब आपके पास आ जा रहा हूं। आप एक आम आदमी, एक टैक्स पेयर की मैं अगर खास तौर से बात कर लेता हूं, उम्मीद थी कि शायद इस बार, पिछले बजट में कुछ नहीं हुआ, उससे पिछले बजट में भी बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं हुआ, इस बजट में उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बहुत हो जाए, आप 2.5 लाख की जगह 3 लाख की स्लैब कर दीजिए एटलीस्ट, या फिर दूसरे तरीके से कोई राहत दीजिए। आम टैक्स पेयर्स की मैं अगर बात कर रहा हूं, उनको राहत नहीं। और दूसरा, इस पूरे बजट पे ओवरव्यू आपका पॉजिटिव और नेगेटिव? निम्न वर्ग की या उसमें किसी राजपाल साहब, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ पा रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि जरा आवाज को दुरुस्त करें। और इसी सवाल के साथ मैं जा रहा हूं नवीन साहब के पास। नवीन साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है, आप जरा समझाएं बेहतर तरीके से। नमस्कार तुषार जी। सर बताएं। इस बजट को हम देखें अगर ये रिक्वायरमेंट हो कि जब भी बजट आए और जीएसटी के रेट हर बार कम कर दिए जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम लोग कि आज के दिन जस्ट ए मिनट, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन जो प्रॉब्लम है जी, कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 स्कीम स्लैब दिए थे, जिसके अंदर आम यूजर को प्रॉब्लम आ रही है कि वो नई स्कीम में जाए या पुरानी स्कीम में जाए। से 5 लाख को इनकम टैक्स नहीं है, 7.5 लाख रुपए तक कुछ टैक्स अलग है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि टैक्स की स्लैब को सिंपल ना करके इसको डिफिकल्ट किया जा रहा है। आम आदमी का टैक्स है, आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, जो कि सबके लिए डिफिकल्टी है। आज के दिन हम बात करते हैं कि 31 दिसंबर को लास्ट डेट थी आईटीआर फाइल करने की। एक आम आदमी खुद आईटीआर फाइल कर सकता है, लेकिन उसको अपनी आईटीआर फाइल करने से पहले ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि वो नई स्कीम में जाए, पुरानी स्कीम में जाए। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि पूरे साल के अंदर असेसिस को बड़ी डिफिकल्टी आई थी, तो इसका फीडबैक भी मिनिस्ट्री तक गया हुआ था। तो एक्सपेक्टेशन था कि इसको सिंपल करेंगे। और कई बार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो लास्ट वाली जो स्कीम है कि इसके अंदर एचआरए अलाउ नहीं कर रहे जी, सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज की, वो नहीं अलाउ कर रहे, इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए की, वो अलाउ नहीं कर रहे।
तो क्या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहती है या चाहते हैं कि थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में वो एक जो सिंपल आम आदमी है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दे? तो काफी कुछ एक्सपेक्टेशन थी इस बजट के अंदर। हाँ, तो इसके अलावा मैं बात करूंगा जीएसटी के अंदर कोई चेंज नहीं किया, जो कि बजट के अंदर कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं चेंज करने की, क्योंकि एवरी मंथ काउंसिल मीटिंग एक तरीके से बजट के चेंजेस ही आ रहे हैं जीएसटी के अंदर। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब अमेंडमेंट ना आए। बिल्कुल। लेकिन कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पेट्रोल और डीजल के को भी जीएसटी के अंदर लेके आया जाए। यानी कि कुल मिलाकर आपके लिहाज से जितना मैं समझ पा रहा हूं, बजट में कुछ बहुत बड़ी खास बातें नहीं है। मुझे लगता है पिछली बजट को एक नए रैपर में आपने पेश कर दिया और कुछ नई योजनाएं आपने बता दी, एक बोर्ड पर लिख दी कि देखिए ये भविष्य में होगा, हम 5G ले आएंगे, 5G लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले आप ठीक से लगाइए, 4G की स्पीड तो प्रॉपर तरीके से हर तरफ हर गांव में पहुंच जाए, 5G तो उसके बाद टेस्ट कीजिएगा। लाना तो बेहतर है, लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कहां लगाएंगे टावर्स, आप कहां करेंगे उसकी टेस्टिंग, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। LIC का IPO आप पिछली साल भी ला रहे थे, आप अभी तक LIC का IPO नहीं ला पाए और अब आप कह रहे हैं कि हम इस साल लेकर आएंगे। तो तमाम चीजें हैं जो कि कहते हैं कि अनुमान है, बजट हमेशा लुभावना होता है, लेकिन अगर आप उसके दांव पेच को देखते हुए चलें तभी मुझे लगता है कि समझ पाते हैं कि वो कितना हकीकत में तब्दील होगा और कितना हवा हवाई रह जाएगा। राजपाल साहब, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही हो और आपकी आवाज मुझ तक आ जाए तो एक बार आप अपना ऑडियो भी टेस्ट करा दीजिए और अपना जवाब भी दे दीजिए। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको, कहिए। हाँ सर, ये बेसिकली आम लोगों का बजट नहीं है सर। ये इस बजट में बहुत सारी उम्मीदें थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई जाएगी या उसकी स्लैब रेट बढ़ाया जाएगा, वो भी नहीं बढ़ाया, ना कोई इन्वेस्टमेंट के लिए किसी का था उसमें कोई चेंजेस हुआ। तो ओवरऑल आम बजट तो नहीं है, ये आम लोगों का नहीं है, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर पूरा ध्यान है। बट एक जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। ओनली इंडस्ट्री पे ध्यान दिया है, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज जो हैं उनके टैक्स स्लैब में, उनके सरचार्ज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, इनमें चेंजेस जरूर सरचार्ज में किए हैं, 12% से 7% किया है, और बाकी कुछ खास बजट नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी सिर्फ इतना सोचता है, उसे आंकड़ों से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। जहां आंकड़े फीसदी में बताए जाते हैं, आम आदमी के ऊपर से निकल जाते हैं। वो सिर्फ इतना समझना चाहता है कि मुझे ये बताइए कि ये रोटी कपड़ा और मकान जो मेरे किचन का हिसाब किताब है, ये जो गैस है, ये पेट्रोल डीजल है, और जो तमाम चीजें डेली नेसेसिटी में आती हैं, ये सस्ती होंगी कि महंगी होंगी, आम आदमी को सिर्फ इतना समझ में आता है। और अगर आम आदमी को आप ये बजट में नहीं समझा पाए, अगर मुझे लगता है राजपाल साहब, नवीन साहब, अगर आप ही काफी निराश हैं तो एक आम आदमी के लिए तो फिर निराशा उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ बीजेपी के हमारे साथी हमारे साथ हैं, पंकज साहब हैं। पंकज साहब, आप कह रहे हैं विकास का बजट है, इससे बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ बजट दिया गया है, तो अब मुझे जरा समझाइए कि रोटी कपड़ा और मकान में आम आदमी हूं, मुझे आम आदमी को क्या मिला, मुझे आप समझा दीजिए। अगर आप मुझे समझा लेंगे तो मैं मान लूंगा कि देश के लोगों को भी आपने समझा लिया। आपका माइक शायद म्यूट है, एक बार अनम्यूट करके बोलिए। हेलो तुषार जी, आ रही है आपके पास। अगर आप देखें तो जो हमारे नवीन जी है, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहीं भी बजट के ऊपर निराशा नहीं प्रकट की। उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर है, जो फाइलिंग का प्रोसीजर है, जो टैक्स स्लैब है, जो लास्ट ईयर दिए गए हैं, वो टैक्स स्लैब को थोड़ा सा तर्कसंगत या सरल किया जाना चाहिए था आम आदमी के लिए। पर मैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उसमें से जो दूसरा स्लैब इंप्लीमेंट किया गया है, उसमें से इन्वेस्टमेंट पोर्शन था वो हटा लिया गया। तो मैं नवीन जी को यही बताना चाह रहा हूं कि नवीन जी, उसमें जो पहले वाला पुराना स्लैब था, उसमें वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस इंटैक्ट रखी गई है, क्योंकि आम आदमी को ही जो निम्न वर्ग है या मध्यम वर्ग है, वो ही पैसे को सेविंग करता है, बचाना चाहता है। तो उसके लिए जो उसकी लिमिट है 5 लाख, या जो उसमें जो पुरानी स्लैब है उसमें वो सब चीजें इंटैक्ट रखी गई है। जो नई स्लैब बनाई गई है
वो हायर इनकम वालों के लिए है बेसिकली, और उसमें से वो सब जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लेगी। यानी कि आप भी खुद मांग रहे हैं ना कि मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है इस बार, कोई और राहत नहीं दी गई, या तो पुरानी व्यवस्था है या फिर जो खास लोग हैं उनके लिए। मिडिल क्लास की प्रायोरिटी सेविंग है और वो सेविंग इंटैक्ट रखी गई है पुरानी स्लैब में। मतलब वो एक, अगर आप देखें कि अगर वो 1.5 लाख की अपनी सेविंग करना चाहे, अपनी हाउसिंग की सेविंग करना चाहे, अपनी मेडिकल इंश्योरेंस है, वो सभी की सभी उसमें इंटैक्ट है। मतलब उसमें कुछ ये तो पुरानी बात हो गई, वो नया कुछ नहीं है। कि नवीन जी वो कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज नई और पुरानी प्रोसीजर से सर हमें क्या फर्क पड़ता है? प्रोसीजर से हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे अगर प्रोसीजर फॉलो करना होगा, मैं राजपाल साहब हैं, सीए हैं, मैं अपना आईटीआर जब भरता हूं तो मुझे प्रोसीजर से अंतर नहीं पड़ता, मैं सीए से बोलता हूं मुझे बता दो कितना टैक्स पे करना है। नवीन जी ने वो मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्शंस बता देते, मैं उसको फॉलो कर लेता हूं। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि भी उसकी पुरानी स्लैब या नई स्लैब से किसी को कोई नुकसान हुआ है, रहता दोनों स्लैब से। मैं तो ये बात कर रहा हूं और राहत क्या, मैं तो ये बात कर रहा हूं और राहत क्या। कोरोना काल में तमाम तरीके से खर्चे हुए हैं, कोरोना के इलाज में ही खर्चे हुए हैं तमाम तरीके के। अब कोरोना वैसे भी, अगर मैं गलत हूं तो नवीन साहब और राजपाल साहब मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, कि कोरोना के इलाज में जो पैसा खर्च करते हैं ना तो उसमें हमें जीएसटी में छूट मिलती है ना ही इनकम टैक्स में, है ना। तो उस बीमारी को भी आप उसमें ला सकते थे ना, उसकी लिस्ट में ला सकते थे। तुषार जी पहले आप समझे कि जो आपका हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर जीएसटी ट्रीटमेंट के ऊपर कोई भी जीएसटी का कोई चार्ज नहीं है, कहीं पे भी किसी तरह से जीएसटी नहीं लगता है। नंबर 2, आप देखिए इस देश में गवर्नमेंट द्वारा इतना बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया, वो बिल्कुल मुफ्त आम आदमी के लिए था। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने टीकाकरण के ऊपर की, इतना वो लगाया, वो बिल्कुल मुफ्त दिया गया है। आप देखिए पूरे संसार में देखिए इतना बड़ा, अगर आज जितने टीका आज हमारे देश में लगाए गए हैं, अमेरिका की आबादी का डबल से ज्यादा अमेरिका की आबादी को 2-2 बार लगा दी, इतने बड़ा टीका अभियान हो गया हुआ है। तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, और इसके लिए बजट रखा गया था और वो यूज किया गया। 35,000 करोड़ रुपए दिए गए पिछले साल। हाँ जी, हेलो, मैं सुन रहा हूं आपको, मैं यही कह रहा हूं कि पिछली साल वाली चीजें तो सब ठीक है, सब अच्छा था, लेकिन इस बार उम्मीद ये थी कि आप और बेहतर देंगे ना। देखिए पिछली बार जो अर्थव्यवस्था डगमगाई उसको आपने वैक्सीन डोज दे दी, इस बार बूस्टर डोज देना था ना, वरना इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अब जो सर वो बूस्टर डोज शुरू की है तो वो भी तो बजट में से जो एक्सपेंडिचर है उसमें से जाएगा, बूस्टर डोज भी तो शुरू किया ना। चलिए महिमा जी, फिर आप बातों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कहाँ बूस्टर डोज भी दी गई है, और जो युवक युवती है जो उनके लिए उनको लाया गया है इसमें टीकाकरण में। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान जितने भी आपके हॉस्पिटल्स है, ऑक्सीजन की जो कमी रही है उनको स्ट्रेंथन किया गया है। इससे पहले हमारे देश में जो कोरोना काल के दौरान जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हुआ था उसको मजबूत किया गया है। जो पहली जो वेव आई थी उसके बाद जो थर्ड वेव आई है उसमें वो सिचुएशन नहीं है। आज आप देखिए ना, आज आम आदमी को पहले से साहब आप मुझे पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, आप मुझे पुराना बजट रिपीट कर रहे हो और अब नया बजट पेश हो चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं पुराना बजट क्यों बता रहे हैं आप, नए बजट पे आइए ना कि इस बार क्या आप ये कह रहे हैं कि देखिए वैक्सीनेशन फ्री में हुआ, 35,000 करोड़ रुपए दिए, वो पिछले साल दिया था, पिछले साल हमने चर्चा की आपसे, इस बार क्या है ये बताइए ना। सर इस बजट में उसको विड्रॉ थोड़ा ना किया गया, उसको कंटिन्यू किया गया है, उसमें और बढ़ोतरी की गई है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लगा कि उसको विड्रॉ नहीं किया गया, उसको कंटिन्यू किया गया। लेकिन मैं ये कब कह रहा हूं, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि उम्मीदें तो उससे ज्यादा थी ना आपसे। आपने नौकरी पेशा व्यक्ति को आपने टैक्स स्लैब में कोई अंतर नहीं किया, आपने आम आदमी की रसोई के अंदर जो महंगाई बढ़ी हुई है, मैं सरसों के तेल का जिक्र कर लेता हूं, ठीक है पेट्रोल डीजल में छोड़ दे रहा हूं, स्टेट सब्जेक्ट है, जीएसटी और वो सारी बहुत सारी चीजें हैं। मैं सरसों के तेल की बात करता हूं, इतने महीनों तक सरसों का तेल महंगा रहा और आज भी कोई बहुत सस्ता नहीं हुआ। उन खाद्य पदार्थों की सस्ता हो जाए इसके लिए क्या कोशिशें हैं। इसके साथ ही साथ आप जो अभी कर रहे हैं, नो डाउट मैं बजट पे उंगलियां इसलिए नहीं उठा रहा हूं बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे ये पता है कि ये लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो शायद ये एक अच्छे इंप्लीमेंटेशंस लेकर आएगा सोसाइटी के अंदर, इस देश के अंदर, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या किया जाए। तुषार जी अगर आप इन्फ्लेशन की समस्या को देखिए तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज इन्फ्लेशन से सभी कंट्रीज जूझ रहे हैं। अगर आप देखिए पीछे अमेरिका जैसा कंट्री इन्फ्लेशन से जूझ रहा है,
तो ये कोई स्थानीय मुद्दे नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को हमारे देश को भी सेव करना पड़ रहा है। आप देखिए ना, एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि हम तिलहन की खेती को बढ़ावा देंगे, वो तिलहन की खेती को बढ़ावा देने का पर्पस पंकज साहब, ना तो महिमा जी आपसे इत्तेफाक रख रही हैं और ना ही हमारे इनेलो के साथी आपसे इत्तेफाक रख रहे हैं। महिमा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ओपी धनखड़ साहब इस बजट पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले मैं वो सुनवा देता हूं, फिर महिमा आपके पास आ रहा हूं। ये अभिनंदनीय बात है जिसमें आगे का विचार किया जाए, और मैं कहूँगा कि ये विकास उन्मुखी बजट है और इस बजट में सबसे ज़्यादा कोई इस बात पर ध्यान दिया गया है तो आगे का विकास किस प्रकार से हो। देश की ग्रोथ भी 2.7% विकास की रहने का एक अनुमान लगाया गया है। जीएसटी भी इस बार 1,40,986 करोड़ इकट्ठा हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगा कि रोजगार उन्मुखी बजट है जिसमें 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। इस प्रकार से ढांचागत विकास की बात इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने की है। मैं अभिनंदन करूंगा उनका कि उन्होंने 25,000 किलोमीटर हाईवेज बढ़ाने की बात इसमें की। ठीक है, चलिए महिमा जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात कहिए। दो आंकड़े मुझे इस समय बड़े ही उचित लग रहे हैं जिक्र करने के लिए तुषार जी। एक तो 35,000 करोड़ का पंकज जी ने अभी जिक्र किया। मुझे मेरी आवाज एको मिल रही है, शायद किसी का स्पीकर ऑन है। मैं अभी ठीक करवाता हूं इसको, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ठीक करवाइएगा। तो तुषार जी इसमें दो आंकड़े 35,000 करोड़ और 48,000 करोड़। 35,000 करोड़, क्षमा चाहती हूँ, 35,000 करोड़ पिछले वर्ष वैक्सीनेशन के लिए नियुक्त किए गए थे बजट के अंदर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करके मई जून जुलाई के महीने तक भी वो 35,000 करोड़ का जो घोषणा थी वो एक जुमला ही था और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दूसरी लहर से देश में आगजनी है। वो 35,000 करोड़ कहाँ हैं, वो कहाँ लगाए जा रहे हैं? तब जाकर के सरकार की आंखें खुली, या ये कहा जाए जो वो जबरदस्ती विमुख थे अपनी जनता से, जो सिर्फ घोषणा और जुमलों भरा बजट पेश कर चुके थे, उसको लागू करने पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष विवश किया था। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, वो 35,000 करोड़ का जुमला देकर वो बैठ गए थे हाथ पे हाथ धर के, जो पिछले 7 वर्ष से इतिहास रहा ही है इस सरकार का। आज यदि बात की जाए 48,000 करोड़ की, आज जो हम सुन रहे हैं पीएम हाउसिंग स्कीम के अंदर दिया गया है। पिछले वर्ष ये घोषणा की गई थी बजट के अंदर तुषार जी कि पीएम हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है या जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो लक्ष्य है वो 2022 के अंदर अचीव कर लिया जाएगा, और 2023 तक के बजट के अंदर अब फिर से 48,000 करोड़ का एलोकेशन। इस बात को क्या समझा जाए या कैसे समझा जाए कि 48,000 करोड़ का जो आज घोषणा कर रहे हैं, और जब पिछले वर्ष घोषणा हाउसिंग फॉर ऑल की थी, जब पिछले वर्ष में वो अचीव नहीं किया जा सकता तो इस वर्ष उसे अचीव कर लेंगे। बात करते हैं टैक्स की, बात हम पहले कर चुके हैं, बात करते हैं और जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जैसे कि 2 बड़ी घोषणाएं इसमें तुषार जी हुई, क्रिप्टो करेंसी को और डिजिटल एसेट्स को लेकर के बहुत बड़ी घोषणाएं हमारी वित्त मंत्री जी ने की हैं। उन्होंने कहा आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी और उसको जो निवेश करने का जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी का जो जरिया है जहां आम आदमी निवेश कर सकता है, उसके ऊपर सीधे सीधे 30% की टैक्स स्लैब लगा दी, उसके ऊपर 30% का जो अभी तक का सबसे ज्यादा है, 30% टैक्स उसके ऊपर लगा दिया। और उसके साथ साथ वित्त मंत्री ने देश को ये नहीं बताया कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिल तो लाया ही नहीं गया है अभी तक, उसको पारित नहीं किया गया है, तो वो ये तय कर लें कि क्या वो एक गैर कानूनी चीज के ऊपर टैक्स लगा रही हैं या वो बिना बिल को एक्ट बनाए ये घोषित कर रही हैं कि हम इसे कोई क्लियरेंस नहीं है। जनता को आपने बताया नहीं कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, उन्हें मझधार में छोड़ा हुआ है, और ऐसी मझधार में छोड़ करके आपने कह दिया इस पर से हम टैक्स भी ले रहे हैं 30%। तो ये आनन फानन में फैसले करने वाली, गैर नीतिगत तरीके से चलने वाली सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश को बरगलाने का काम कर रही है। एक और बहुत अहम घोषणा हुई है तुषार जी, आप देखें कि 60 लाख रोजगार की बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा जुमला इस सरकार ने एक बार फिर से दिया है। जो युवा पिछले 7 वर्ष से हाथ पे हाथ धर के निराश हताश होकर आज बैठा है, घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर ही आपको पता है अनिल नागर का केस सबको पता है, अभी पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है। आज 60 लाख रोजगार की यदि आप घोषणा कर रहे हैं
तो आप कहाँ, कौन से सेक्टर में वो नौकरियां देने वाले हैं, जरा वो भी बताएं हमारे युवाओं को। आप किस प्रकार से उनको उपार्जित करने वाले हैं, किस तरह से क्रिएट करने वाले हैं इन जॉब्स को, वो भी बताएं। क्योंकि ये जुमला तो आपने 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया था, बल्कि 2014 से पहले मुझे याद है कि मोदी जी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, और उसके तर्क में उन्होंने कहा था कि यदि हम सत्ता में आ गए तो हम 2 करोड़ के रोजगार देंगे, 2 करोड़ के। वो 2 करोड़ में से मुझे लगता है 2 लाख रोजगार भी हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। कहीं रोजगार आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, सबका, और मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख। सबका प्रयास पे आ गए, सबका विकास से सबका प्रयास पे तो आ ही गए हैं। अब कल को सबका विनाश पे भी ये सरकार हमें ले ही आएगी। यानी कि आपको आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पर भरोसा नहीं है? आप कहते हैं सीधे सीधे नौकरी दीजिए, हमें मेक इन इंडिया में जॉब्स क्रिएट करने की बात हुई थी 2014 में तुषार जी। मेक इन इंडिया के अंदर ही जॉब्स क्रिएट करने की बात हुई थी, वो कहाँ है? तभी तो हम जवाब मांग रहे हैं कि कहां से आएंगी 60 लाख नौकरियां, जब मेक इन इंडिया आपने कहा था उसके नतीजे के तौर पर हमें कहीं कोई रोजगार आज देखने को नहीं मिलते, कोई इजाफा रोजगारों में देखने को नहीं मिलता। तो आप सबका विकास से सबका प्रयास और सबका प्रयास से सबका विनाश में हमें लेकर जा रहे हैं क्या? ठीक है, संदीप साहब भी कुछ राजी से नहीं दिख रहे इस बजट के साथ। संदीप साहब आप अपना पॉइंट रेज कीजिए, फिर मैं जाऊंगा नवीन जी के पास, राज्यपाल साहब के पास। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए संदीप जी। तुषार जी, आज का जो बजट है ये वास्तव में निराश करने वाला बजट है। और महिमा जी ने बड़ा अच्छा एक इनके ऊपर सवालिया निशान उठाया क्रिप्टो करेंसी का। जब कानून किसी चीज का बना नहीं हो तो गैर कानूनी तौर पर आप एक प्रकार को, मैं इसे लूट का नाम दूंगा, 30% टैक्स का लेके 30% लूट करने का काम सरकार के द्वारा करने जा रही है। आप जब किसी चीज का कोई कानूनी दर्जा ही हासिल नहीं हुआ, उसको मान्यता नहीं मिली कि भाई आप ये काम करो लीगल सेंस में, आप उसको एक लीगल मैनर में कैसे उसको लीगल कर सकते हो? ये सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आप कितने गैर जिम्मेदार ना हो। आप केवल और केवल घोषणा करना जानते हो, उसको धरातल पर इंप्लीमेंट करना नहीं जानते। आपके रोड मैप क्या आपके पास कि भाई आपने क्रिप्टो करेंसी को क्या आपने लीगल सेंस दे दी? क्या पार्लियामेंट से आपने कानून बनवा दिया? क्या आपने उसको लीगल करवा दिया? कोई चीज लीगल बनेगी फिर उसके पास ऊपर बिजनेस होगा, बिजनेस के ऊपर इनकम होगी। इनकम आप किसी पॉइंट पे पंकज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए। हो सकता है क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून इसी बजट सत्र में ले पंकज साहब। तुषार जी देखिए, इन्होंने कोरोना को इस सत्र या अगले सत्र में कानून ला रहे हैं क्या? काम किया, थपथपाने का काम कोरोना को लेकर किया। इनसे ये पूछिए कि गंगा में लाशें बह रही थी, ये मना कर रहे थे कि ये सरकार की कमी की वजह से नहीं मरे। ठीक है, पूछते हैं। सरकार के जब ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे तो सरकार एफिडेविट देती है सुप्रीम कोर्ट में कि ठीक है संदीप साहब, कोई भी आदमी ऑक्सीजन की आज की बात करते हैं, पुरानी बातें छोड़िए ना, कई बार डिस्कशन किया इन बातों पे। आज की बात कर रहा हूँ, कई बार डिस्कशन हम आज की बात करते हैं। भाजपा के लोग अतीत की बात करते हैं या फिर आज के दिन वो बात सुनी कि हम 25 साल के आगे की बात कर रहे हैं। भाजपा आज की बात नहीं करती, या तो 70 साल पुरानी बात करें। मेरे पास समय कम होगा, मेरे पास समय कम होगा, मैं सुन लेता हूँ पंकज साहब। तुषार जी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस है। हमारी गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर विजन है। हम क्रिप्टो करेंसी को एनकरेज नहीं करना चाहते, परंतु देश के लोगों का करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है। अगर आज गवर्नमेंट उसको इनवैलिड कर देती है तो उनका वो पैसा खराब हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हार्ड टैक्स लगा के, मैक्सिमम रेट पे टैक्स लगा के एक मैसेज दिया है कि गवर्नमेंट उसको डिस्करेज कर रही है। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को कहीं पे भी एनकरेज नहीं कर रही है। गलत डिजिटल करेंसी भी तो ला रही है ना आरबीआई की। आरबीआई टैक्स आप कैसे लगा सकते हो जब आप उसको लीगल नहीं है, बिजनेस लीगल नहीं है तो आप उसको इलीगल। आप तो टैक्स लेकर उसे पाक साफ कर देंगे ना संदीप जी। तुषार जी, अगर आज गवर्नमेंट उसको इनवैलिड कर देती है तो जो आम आदमी का करोड़ों रुपया इसमें लगा हुआ है आदमी, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसको रेगुलराइज करने के लिए 30% टैक्स लगाया गया है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो डिजिटल करेंसी लेके आएगी। आरबीआई डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करेगी जो स्टेट करेंसी होगी। तो इस वजह से ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया कि उसको डिस्करेज करने के लिए। शायद महिमा जी और संदीप जी उसका कंसेप्ट नहीं जानते, इसलिए वो इस तरह की बातों को उछाल रहे हैं। ठीक है, महिमा जी का पॉइंट ले लेता हूं, फिर मैं जा रहा हूं तुषार जी
कल को क्या ये सरकार सट्टा बाजार और ड्रग्स के ऊपर भी टैक्स लगाने का काम करेगी, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है देश के लोगों का। ऑलरेडी टैक्स है उसके ऊपर, सट्टा के ऊपर। आई थिंक उसे गैम्बलिंग टैक्स भी कहते हैं, अगर मैं ठीक हूं तो। प्रधानमंत्री अपने ही प्रधानमंत्री की खातों काट रही है यहाँ पर। डिजिटल इंडिया की बड़ी बड़ी बातें ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज हुआ। नवीन साहब के पास जा रहा हूं मैं, नवीन साहब के पास। नवीन साहब, गैम्बलिंग टैक्स क्या कहना चाहिए, नापाक चीज को पाक में कन्वर्ट करने का एक तरीका है ना, और ऑलरेडी देश के अंदर है, लिया जाता है। ड्रीम 11 कई सारे ऐसी एप्स हैं जो इसी तरीके के कॉन्टेस्ट या फिर अलग अलग तरीके से कराती हैं, और उन पर टैक्स लगता है अच्छा खासा। बिल्कुल टैक्सेबल है वो सब चीजें, उसके ऊपर गैम्बलिंग टैक्स है ही। और तुषार जी, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि चाहे आपकी इनकम लीगल है चाहे इलीगल है, डिपार्टमेंट को टैक्स चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये टैक्स जो स्ट्रक्चर है ये बीजेपी द्वारा नहीं लाया गया, ये कांग्रेस से लाया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपकी इनकम चाहे लीगल है चाहे इलीगल है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसमें उसको क्या सजा होगी, पर अगर आपकी इनकम इलीगल है तब भी उसके ऊपर टैक्स, इनकम है तो टैक्स दीजिए, सिंपल सा फॉर्मेट। नवीन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से आप सुन रहे हैं। इनकम टैक्स पे करने से मतलब ये नहीं है कि वो कि क्रिप्टोकरेंसी लीगल हो गई है, उसका जो बिजनेस है वो लीगल हो गया है। इनकम टैक्स पे कर दीजिए, वो सेकंड मैटर है, अलग अथॉरिटीज हैं जिनको चेक करना। अदर अथॉरिटीज, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजपाल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर टैक्स के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर बातें चल रही हैं, डिजिटल करेंसी का भी जिक्र हुआ, आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है, इसके साथ ही साथ ये बात पहले भी हुई, क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स भी लगेगा। ये सारी चीजें क्या भविष्य में, क्योंकि शुरुआत में अभी 2 से 3 महीने पहले जब क्रिप्टो करेंसी का हम जिक्र काफी बड़े लेवल पर कर रहे थे, तब ये कहा जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेगी गवर्नमेंट, और आने वाले समय में इसको एक बड़ा कानून बनाया जाएगा, इसको लीगल करने की तरफ इशारा किया जाएगा और एक डिजिटल करेंसी लाई जाएगी। मैं यहां पर यह समझना चाहता हूं, अगर डिजिटल करेंसी आरबीआई लेकर आती है तो क्या क्रिप्टो करेंसी को आगे चलकर लीगल की तरफ लेकर जाएगी, या फिर उसके रास्ते ढूंढेगी कि कैसे इसे लीगलाइज किया जाए और कैसे इसे चैनलाइज भी किया जाए? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि क्रिप्टो करेंसी को वो लीगल लोन लेके आए और उसको लीगल बनाए, और उसके साथ साथ पैरेलल एक नई करेंसी आरबीआई लेके आए और उस करेंसी को फिर धीरे धीरे लोग अडॉप्ट करें और उसको आगे लेके जाएं, ना कि क्रिप्टो करेंसी को। और क्रिप्टो करेंसी को टैक्स में लाने का एक बहुत ही बढ़िया ये गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि अभी तक लोग करोड़ों में कमा रहे थे बट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा था इससे। तो इससे टैक्स नेट में लाने का ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि कोई भी इनकम हो, किसी भी बंदे को कोई भी इनकम हो, किसी सोर्स से भी हो, वो टैक्स नेट में आनी चाहिए, और वही प्रयास है गवर्नमेंट का कि क्रिप्टो करेंसी को उसके नेट में लेके आए। अच्छा, मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र की बात की गई और कहा गया कि हम तुषार जी उसमें मैं आपको एक चीज और दोबारा से फिर कहना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, वो इसको डिस्करेज करती है, परंतु आज अगर इसको वो इनवैलिड घोषित कर देती है तो देश के जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है करोड़ों अरबों रुपए, वो एकदम खत्म हो जाएंगे। उसी को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट उसको टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर लेके आई है। अदरवाइज जिस दिन गवर्नमेंट आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगी तो वो क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। पर्पस ये है इसका, उसको रिप्लेस करने का काम करेगी, बिल्कुल रिप्लेस करने का काम करेगी। और आज आप देखिए क्रिप्टो करेंसी में जितनी यंग जनरेशन है सर, उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करती है, उनको उसकी नॉलेज नहीं है, बैठे बैठे ही वो लाखों करोड़ रुपए लूज भी कर देते हैं और कुछ लोग कमा भी रहे हैं। इसमें कमा कुछ लोग रहे हैं और लूज ज्यादा कर रहे हैं। और क्योंकि कारण क्या है कि उसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बने हुए, कोई एक्सचेंजेस नहीं बनी हुई है, उसकी वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने डिजिटल करेंसी की अनाउंसमेंट की और साथ के साथ इसको टैक्स नेट में लेके आए हैं ताकि लोग डिस्करेज हो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट उसको ब्लैंकेटली इसको अगर वो कर देती है, इसमें बैन लगा देती है, तो करोड़ों अरबों रुपए देश का जिसकी कोई फिगर जो अभी तक गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र का अगर मैं जिक्र करूं, डिजिटल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया, इसके साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूं आंगनवाड़ियों को हम बहुत मॉडर्नाइज करेंगे, वो भी एक बड़ा फैसला इसमें लिया गया शिक्षा को लेकर।
और भी तमाम चीजें हैं। स्किल्स को लेकर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम उद्योगों की जरूरत के अनुसार बनाया जाएगा, ये भी कहा गया। मुझे ये समझाइए कि क्या ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर, ये जो दो पॉलिसीज सरकार की चल रही हैं, अब सारा फोकस इसी से है कि देखिए जो रोजगार और बेरोजगारी का जुन खत्म होगा वो इसी बात से होगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर स्वरोजगार और स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेकर चले जाइए। क्या इसी से सुधरेगा सब कुछ? पंकज साहब देखिए तुषार जी, आप एक बात समझिए कि गवर्नमेंट किसी को भी, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर सकती। सबको उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, पर हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो लोग उसमें काम करते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये तो एक सिंपल अर्थशास्त्र, कोई साल भर पहले की बात है, संसद के अंदर कार्मिक मंत्री ने कहा था, आंकड़े देते हुए मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं आपको, कि 4 बड़े विभाग और मंत्रालयों के अंदर लगभग 4 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, और ये उन्होंने कहा था कि इसे जल्द से जल्द भरा जाए। तो मैं तो बात इसकी कर रहा हूं कि ठीक है, आपने जो बात कही मैं उसको मानूंगा, मैं उसको आगे भी लेकर जाऊंगा कि बेहतर है कि अगर आप स्वरोजगार की तरफ बढ़े, आप सिर्फ नौकरी करें नहीं, नौकरी देने वाले व्यक्ति भी बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पेंडिंग पड़ी है आप उसे तो भरिए पहले। तो तुषार जी उसके लिए प्रोसीजर है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। होल्ड ऑन है सर, अभी आपने देखा ना बिहार में क्या हुआ। आपने कहीं ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट कहीं पे कोई क्या नाम है प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है? गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट कर रहा है। आप देखिए रेलवे कितनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, पीछे वहां पे लगभग कितनी जॉब्स निकली थी वो रेलवे में गई थी। इसी तरह अगर आप रोडवे, अगर मेरा आंकड़ा ठीक है तो रेलवे के अंदर ही 2 से 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं। तो ये पद अपने जो गवर्नमेंट, ठीक है, महिमा जी कुछ कहना चाह रही है? महिमा जी मैं आपके पास आऊंगा। अशोक अरोड़ा कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं, मैं सुना देता हूं पहले। बजट पेश होना होता है, देश के लोगों को बहुत उम्मीद होती है देश की सरकार पे, विशेष रूप से वित्त मंत्री पे, कि देश का वित्त मंत्री देश के आम नागरिक को बजट में क्या राहत दे। जिस प्रकार से पिछले दिनों महंगाई दर बहुत बढ़ी, आज महंगाई बहुत बड़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है। आज मिडिल मैन को इनकम टैक्स में पिछले 7 सालों से मिली है। सबको उम्मीद थी कि इस बार महंगाई को कैसे रोका जाएगा, टैक्स में कमी लाएगी सरकार, आपकी आवाज आ रही है, रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, मिडिल मैन इनकम टैक्स में राहत चाहता था। परंतु इस बजट में सबको निराश किया। इवन जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, जो पिछले 13 महीने से जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिनको ये कहा गया था कि हम MSP की गारंटी पे एक कमेटी बनाएंगे, परंतु इसके अंदर केवल यही कहा गया कि MSP पे खरीद करेंगे। आप देखते होंगे कहने से नहीं होता। आपके यहाँ हरियाणा की बात करें, जो बाजरा है, मक्का है, MSP से 800 रुपये क्विंटल कम बिका, किसी ने कोई गारंटी की बात नहीं कही। तो ये बजट पूरी तरह से निराश। तो अशोक साहब को आप सुन रहे थे, महिमा जी के पास मैं जा रहा हूं। महिमा जी अपना पॉइंट रेज कीजिए। मैं ये कहना चाह रही थी, अभी रेल की बात उठाई भाजपा की ओर से, जो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि रेल आपने उसके ऊपर बड़ी तर्कशील टिप्पणी दे भी दी, लेकिन मुझे ये सुनते सुनते आज के किसान ड्रोन की घोषणा याद आ गई तुषार जी, कि आज किसान ड्रोन की घोषणा भी हुई है। बिल्कुल। किसान रेल की घोषणा भी हुई थी पहले, वो किसान रेल कहां तक पहुंच गई है? क्या इस बात का जवाब भारत सरकार या भारत सरकार के प्रतिनिधि जो चर्चाओं में बैठते हैं वो दे सकते हैं? किसान रेल कहां तक पहुंच गई है? क्या भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वो ये बता सकते हैं कि जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की आज बात हुई है कि 5 हम नदियों को जोड़ेंगे, और उसके अलावा एक तरफ तो क्लाइमेट एक्शन की बात की जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं क्लाइमेट एक्शन को लेकर के की जा रही हैं, क्या भाजपा के प्रतिनिधि इस बात को नकार सकते हैं कि ये मात्र एक लोक लुभावन घोषणा है, और फ्यूचर में, भविष्य में ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो आज जिसकी घोषणा बिना किसी नीति के, बिना किसी रिसर्च के कर दी गई है, ये पर्यावरण के लिए घातक, पर्यावरण के लिए एक महा आपदा साबित नहीं होगा? गंगा के ऊपर जिस प्रकार से बजट एलोकेशन किया गया शुरू से, जब से ये सरकार आई है,
और उसके बावजूद आज जो गंगा रिवर गंगा प्रोजेक्ट है उसकी सच्चाइयां हम सबके सामने हैं। पिछले वर्ष तो हमने गंगा के अंदर लाशें बहती हुई भी देखी, पॉल्यूशन के साथ साथ लाशें बहती हुई भी देखी। क्या आज ये सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है कि बजट के अंदर, बजट सत्र के अंदर प्रदेशों के कृषि विश्वविद्यालयों के सिलेबस की चर्चा करना हास्यास्पद है। ये उनके नौसिखिए होने को दर्शाता है। बजट सत्र कृषि विश्वविद्यालयों के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए नहीं होता है। तो इस सरकार को ये समझना होगा कि जो घोषणाएं ये करते जा रहे हैं, मेक इन इंडिया की, स्किल इंडिया की जो शुरुआत से हम देख रहे हैं जो घोषणाएं होती जा रही हैं, आज वो सारी घोषणाएं एक के बाद एक औंधे मुंह पड़ती जा रही हैं। आज मुझे ऐसा लगता है बहुत जोर लगाना पड़ता है भाजपा के प्रतिनिधियों को इन बातों पर कोई तर्क देने के लिए, क्योंकि दरअसल इस सरकार की जो गवर्नेंस है, जो नीतियां हैं ही नहीं, ठीक है, वो तर्क विहीन छोड़ यानी कि आप कह रहे हैं कि बजट एक बस तर्क विहीन तरीके से पेश कर दिया गया। संजय ककरालिया साहब हमारे साथ एक नए पैनलिस्ट जोड़े हैं, आज हमारे साथ नए पैनलिस्ट जोड़े हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं संजय ककरालिया साहब। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? महिमा जी का जवाब देना चाहूंगा। मैं पंकज साहब आपके पास आ रहा हूं। संजय साहब अभी अभी जुड़े हैं, उनको एक बार शामिल कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। संजय साहब, एक तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। दूसरा, आज का बजट आपकी नजर में, एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट की नजर पे, ओवरव्यू के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा रहा? मेरे को लगता है बजट बहुत अच्छा बजट ये रहा है। जिस तरीके से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, गाँव तक पहुंच बनाई है, रोड पर काम किया है, 20,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाले हैं, 25,000 किलोमीटर नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, स्टेट को बिना ब्याज के 1 लाख करोड़ रुपए दिया है। तो ये सब चीजें फायदा किसको हो रहा है? आम जन को। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आम जन को बहुत फायदा होगा। बच्चों के लिए मैं पूरा बजट सुन रहा था और मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस बजट में कि कोरोना काल में जहां हमारे बच्चों की पढ़ाइयां छूट गई थी, यू नो, तो उन्होंने स्पेशल 200 चैनल चलाए हैं अभी भारत सरकार ने। 1 क्लास 1 चैनल, इट मीन कि हर क्लास के लिए एक अलग चैनल है। तो उससे बच्चा पढ़ाई कर पाएगा। दूर दराज के क्षेत्र में रह पा रहा है बच्चा, वो नहीं स्कूल पहुंच पा रहा था, नहीं कनेक्ट हो पा रहा था, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो अभी हमने बात ही की कि काफी कुछ सरकार ने दिया है। गाँव के लिए, उपज के लिए जो अभी जो इन्होंने घोषणाएं की है कि जिस लोकल सर्कल की उपज होगी उसको इंटरनेशनल नेशनल मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए अलग बजट का प्रावधान रखा है। कैसे न्यू स्टार्टअप, फार्मिंग में कैसे न्यू स्टार्टअप हो, उसको लेके सरकार ने बात की है। इससे बड़ी कृषि के हक में मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई बजट कृषि के हक पर, यानी कि कुल मिलाकर आपके लिए ये बजट थम्स अप बजट है और ये आने वाले 1 साल के लिए बेहतर संकेत लेकर आएगा। मेरे पास समय की कमियां, काफी लेट हमसे जुड़े हैं संजय साहब। मुझे पंकज साहब के पास जाना लास्ट रिएक्शन लेने के लिए। पंकज साहब। तुषार जी, पहली बात तो ये बजट 1 साल के लिए नहीं है, 25 साल के विजन से बनाया गया है। नंबर तो जो महिमा जी कह रही थी कि भी ये लोक लुभावने वो की गई है, तो महिमा जी जानती है कि 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी। जो ये हाईवे बने, ये बने ही है, वस्तु स्थिति ये कि हाईवे बने ही है। जो पहले 10-20 आपके एयरपोर्ट होते थे, आज 120 एयरपोर्ट है, तो ये बने ही है, इसी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। जो एम्स बने हैं वो बने ही है, जो इस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। जो वाटरवेज बने हैं, इनकी कल्पना में भी नहीं था कि ये वाटरवेज क्या चीज है। इनको वाटरवेज का मीनिंग भी नहीं पता था, वो वाटरवेज आज बने ही है। जो कार्गो, जो आपकी फ्रेट कार्गो या फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, वो वाकई बन रहे हैं। जो रेलवे में डेवलपमेंट हुई है इनकी उसमें, क्योंकि इन लोगों ने शुरू से ये योजना बनाने से पहले उस योजना में से कैसे पैसे उड़ाए जाए, ये उस प्रकृति के लोग हैं। ये उसमें उस तरह, ठीक है। देखिए, अब बात प्रतिवाद, आरोप प्रत्यारोप ये सब तो चलते रहेंगे कि हम एयरपोर्ट बना के गए, हमने एयरपोर्ट बनाया, हमने हाईवेज बनाए, ये सारी चीजें तो अपनी जगह हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने के नाते संजय साहब के पास एक बार फिर मैं चल देता हूं। 1 मिनट का समय मेरे पास होगा। संजय साहब, जरा मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की और एक आम आदमी की जेब की, हम रोटी कपड़े मकान की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपने भी तमाम तरीके की योजनाएं घटाई कि देखिए यहाँ पर इतना पैसा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा दिया गया, लेकिन एक आम आदमी अगर रोटी कपड़ा मकान की बात करता है तो उसके लिए क्या है? 80 लाख लोगों को जो सीतारमन जी ने उपहार स्वरूप देश को दिया, 80 लाख घर बना के दे रहे हैं
गरीब लोगों के लिए, तो उससे घर उनको मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज में कॉर्पोरेट में टैक्स अभी रिड्यूस किए हैं इन्होंने, जो ओवर एंड अबाउट टैक्स लगता था कॉर्पोरेट पे वो 12% से घटा के 7% कर दिया, 18% ओवरऑल जो लगता था कॉर्पोरेट पे बजट वो 15% कर दिया, तो उससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। तो जब साधन बढ़ेंगे तो आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा। मकान मैंने अभी बताया 80 लाख घर दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रेन पे काम हो रहा है, एक्सप्रेस पे काम हो रहा है, तो आई थिंक काफी कुछ सुधार होगा। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी आपका भी, महिमा जी आपका भी, पंकज जी आपका भी, और संजय साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर ये उम्मीदों का बजट था, उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा आने वाले समय में ये देखना होगा। फिलहाल ये बजट आज पेश किया गया वित्त मंत्री की तरफ से, आप भी लगातार सुनते रहे। अब यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।